Good morning, students. I, Brijesh Singh, Subhraj Singh Children Academy, strongly welcome in political science class. Dear, as you know, the first test of examination has been declared. Definitely 9th August, the particular day from where your examination test is going to be started. And I have given you 3 chapters. First chapter, nation building. Second chapters, era of single party dominance. This has been deleted by the CBSE board. And third, planned development. As you know, I have delivered one video in nation building and one video in era of single party dominance. CBSE बोर्ड ने उसको भले हटा दिया हो, लेकिन कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको पढ़ेंगे। तो वीडियोस हम डिलीटेड चैप्टर्स पर भी लेते रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में इनकमिंग एग्जामिनेशन, इफ़ यू इंटरेस्टेड इन अपीयरिंग इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पे ये नहीं देखा जाएगा कि 12th में डिलीटेड चैप्टर्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। वो पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीटेड चैप्टर्स को ना पढ़ा जाए, लेकिन एक जनरल परसेप्शन उसका लेते रहें, और जैसे भी लाइव क्लास आएगी हम उन चैप्टर्स को भी कवर करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। एग्जामिनेशन का फॉर्मेट, योर एग्जामिनेशन फॉर्मेट हैज बीन डिसाइडेड फॉर फर्स्ट MCQs, first term, second term MCQs. So this is the very important for you. You have to tackle all the questions with underline, because factual question will be asked. So you have to focus extra attention on your textbook and take every events, every concepts very clearly. So today's session I will take some mix up revision point of view. Mix-up revision point of view, video, nation building, a little bit era of single party dominance, and plan and development. This has been entitled newly planning and development. In the new edition book, if you observe, you will get planning and development, means concept is same, only title has been changed. Now, first lesson, nation building challenges and nation building, short form में nation building. This has been included in coming test and also in your first term examination, which is expected to be happened in November and December. And the second era of single party dominance, one party single party dominance. Definitely this chapter has been deleted by CBSE board, but you have to maintain the long vision. Having completed of the 12th standard examination, definitely you will appear a lot of entrance examination of the Allahabad, BHU and others of university. So whatever the chapters have been deleted, the university is not going to be paid attention. This particular chapter has been deleted. The question cannot be converted from this. So definitely examination point of view chapters you have to study thoroughly, but those chapters who have been deleted, you have to also focus on those chapters. That is the era of single party dominance. हम इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे. एंड थर्ड, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. Development. These 2 chapters and number 4,
एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, फॉरेन पॉलिसी आप कह सकते हैं इसको, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। There are some chapters I will discuss in next video. I am talking the second book, Independence, struggle after independence. Since independence, these chapters have been included in both examination, that the first general test is going to be held in first 9th August, and secondly the main examination will be held in November last week or December first week. That will be 40 questions, 40 marks. Same process would be repeated in, this is first term, second term also 40 questions and 40 marks. तो 40 आपका 80 एंड प्लस 20 आपका प्रोजेक्ट मार्क्स, दैट एग्रीगेट मार्क्स विल बी 100, एग्रीगेट मार्क्स विल बी 100. और वन थिंग इज क्लियर, द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन definitely will be in MCQ mode. There is no confusion, there is no doubt at all. But in the second examination, means second terms, if the situations would be in favor, there is no any crisis of the pandemic, definitely secondly 40 marks will be covered, and the 1 marks, 2 marks and so on, 3 marks, means the mode of this examination will be in descriptive form. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपका होगा. तो इतना ये कंफर्म जान लीजिए, इस पर कोई डाउट बिल्कुल आपको नहीं होना चाहिए कि पहला टेस्ट जो आपका अभी जो पहला टेस्ट 9th को हुआ, 25 क्वेश्चंस विल बी गिवन, ये आपके सिलेबस है, और 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मार्क्स रहेंगे. वो है मेन एग्जामिनेशन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मार्क्स ऐड किए जाएंगे, जिसको हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में के बारे में सिलेबस डिसाइड कर दिया गया है. और जो सिलेबस इस एग्जाम में, इस टेस्ट में है, डेफिनेटली वही सिलेबस आपका टर्म में भी होगा. तो ये जो मार्क्स का है, इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि 40 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 40 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और ये कुल मिला करके आपका 100 मार्क्स होगा. और एक तरीके से आप देखेंगे टोटल 18 चैप्टर्स में, टोटल 2 इंक्लूडिंग बोथ बुक्स 18 चैप्टर्स आपके पास है. और अगर उसमें 3 चैप्टर्स डिलीट कर दिया गया है, तो कुल मिलाकर के आपके पास 12 चैप्टर्स बचते हैं. तो 12 चैप्टर्स में जाहिर सी बात है कि फर्स्ट टर्म में जो चैप्टर्स हो जाएंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, फर्स्ट टर्म में जो चैप्टर्स हो जाएंगे वो सेकंड टर्म के एग्जामिनेशन में शामिल नहीं रहेगा. तो आपका लोड बहुत कम हो जाएगा. अभी आपको केवल फोकस करना है शुरू के 3-4 चैप्टर्स इस बुक में, एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में 2-3 लेसन. तो कुल मिलाकर के ये आपको फोकस करना है. और जब सेकंड टर्म की बात आएगी तो हम इन चैप्टर्स को बिल्कुल उसमें लेके चलना नहीं है. दिस हैज बीन इंस्ट्रक्टेड बाय CBSE बोर्ड ओपनली. यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन एट ऑल. Everything is open, so the very good opportunity and scoring very highly and remarkable marks, whatever examination, and also will be very beneficial for your entrance examination having completed of the intermediate. Definitely your choice will be in very reputed university, and university entrance definitely will be faced. So now till presently I want to say the examination format has been changed. Now your mental attitude, mental perception should also be changed, and definitely you have to study para, point to point स्टडी आपको करना है, डेट्स, इवेंट्स. और सबसे बड़ी बात यह है कि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि शॉर्टकट स्टडी में आप बिल्कुल क्वेश्चन पर कमांड नहीं कर सकते हैं.
फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में जब तक हम आपको इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, हैविंग ओपन्ड द कॉलेज, हम आपको लाइव प्रैक्टिस कराएंगे कि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पे एमसीक्यू का सुपर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक तरीके से समझिए आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ही होता है। अंटिल यू डोंट हैव द क्लैरिफिकेशन ऑफ total concept clearly, you cannot maintain the command of the factual based question। particular topic पर जब तक उसके सारी स्टेप्स आपको मालूम नहीं रहेंगे, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दे देंगे पर्टिकुलर एरा ऑफ सिंगल पार्टी डोमिनेंस के बारे में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको फैक्ट दे देंगे और उसमें बता देंगे कि फाइंड आउट विच इज नॉट करेक्ट, विच इज नॉट करेक्ट। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी भी पॉइंट पर आपको 1, 2, 3, 4 दे दिया जाएगा और उसमें एक करेक्ट पूछें या करेक्ट नहीं पूछें, तो until you don't have the complete knowledge about the particular topic, you cannot discriminate which is right, which is wrong। तो this is called the factual based question। factual based question, in other words you can say definitely the photostat copy of the descriptive questions, but it's very easy to take decision if you have the complete command of the chapter, topic, concept। तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पर हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे, लाइव में कराएंगे और उम्मीद करते हैं कि अगस्त में फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक आपका कॉलेज ज़रूर ओपन हो जाएगा, तो हम उस पर कराएंगे। और ये बहुत अपॉर्चुनिटी बेहतर है कि इसमें आप 40 मार्क्स में 40 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस 9 अगस्त को जो होने जा रही परीक्षा, हमने आपको सिलेबस दिया है, उस पर हम 25 क्वेश्चन एमसीक्यू देंगे और लगभग ऐसे क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे, तो उस पर भी आप कोशिश करेंगे। और जैसे भी स्कूल ओपन होता है फिर हम कॉन्सनट्रेट हो जाएंगे कि 40 मार्क्स पर कैसे कमांड किया जाए, 40 के 40 मार्क्स पर कैसे कमांड किया जाए, किस स्टाइल में क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड पूछेगा, उसका फॉर्मेट देगा। तो हमको एक नई रणनीति के साथ, एक नई स्ट्रेटजी के साथ चलना है। और जब तक हम अभी तक हमने जो समय लिया आपका, इसलिए लिया कि ये बहुत ज़रूरी था कि जब तक हम नई स्ट्रेटजी को समझेंगे नहीं, सिलेबस को समझेंगे नहीं, जब तक हमारा डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होगा, तब तक हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि हमारी जर्नी किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है। तो कुछ नई बातें नहीं बतानी थी। सबसे पहले ये कि जो फर्स्ट टेस्ट में, फर्स्ट टर्म में जो सिलेबस रहेगा वो सेकंड टर्म में नहीं रहेगा, और जो फर्स्ट टेस्ट में चैप्टर हम लेंगे अभी अगस्त में, वो चैप्टर तो आपको टर्म में रहने वाले हैं। एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 25 क्वेश्चंस का हम इसमें प्रैक्टिस कराएंगे और यही चैप्टर्स आपके टर्म फर्स्ट में रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के एवरीथिंग कैन बी एक्सपेक्टेड वेरी गुड फॉर्म। You don't have need any kind of the stress at all. This is the very fantastic mode of examination, and it is very beneficial in coming examination. You can link up of each other. और ऐसे फॉर्मेट की आपको ज़रूरत थी, आपको फॉर्मेट की ज़रूरत थी। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 12th में जितनी स्टडी आप करेंगे, लगभग आप पूरे साल भर किसी प्रेस्टिजियस, किसी रेनॉन्ड यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की तैयारी आप कर रहे हैं। तो दिस इज़ गुड अपॉर्चुनिटी और इस पर हमको बेहतर काम करना है। और ओपनिंग स्कूल के बाद हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से अच्छे टॉपिक्स को लेकर के क्लास प्रैक्टिस, टेस्ट प्रैक्टिस हम करेंगे, इसको लेकर के हम चलेंगे। तो टुडेज सेशन आई वाज टॉकिंग अबाउट द 3 चैप्टर्स, चैलेंजेस एंड नेशन बिल्डिंग। आई हैव जनरेटेड 1 वीडियो, and secondly era of the single party dominance, I have generated also 1 videos, but definitely I want to say again, this particular chapter has been deleted by the CBSE board, but definitely you have to slightly focus on this chapter also, because the questions belonging to entrance examinations also can be covered from here. And thirdly, the planning and development chapters, and the 4th chapter is foreign policy of India. What are the foreign policy currently? What is the international stage? What is the role of India? What is the role of India? What is the relation of the neighboring country to the particular status of any countries can be decided? What are the international role
एक स्थिति, एक कंट्री की स्थिति को आप राजनीतिक तौर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर इस तरीके से वर्ल्ड लेवल पर आप रेटिंग कर सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर उनका, इंटरनेशनल लेवल पर जो फॉरेन, जो एक्सटर्नल अफेयर्स उनका कैसा है, पड़ोसी देशों के साथ उनके संबंध कैसे हैं और लोगों के साथ कैसे संबंध हैं। तो एक नेगोशिएशंस जो होते हैं, जो गुडविल होती है, ये भी एक प्रकार से डेमोक्रेटिक सक्सेस कहा जाता है कि आप पर्टिकुलर कंट्रीज से किस प्रकार के आपके रिलेशंस हैं, स्पेशली आपके नेबरिंग कंट्रीज से कैसे रिलेशंस हैं। तो चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग, एरा ऑफ सिंगल पार्टी एंड डोमिनेंस, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। जस्ट क्विक रिवीजन ले लेते हैं। आज के वीडियो का मकसद केवल मेरा यही है, क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि इन टू चैप्टर से जो टेस्ट आपका 9 अगस्त से होने जा रहा है, 25 क्वेश्चंस हम मैनेज करेंगे केवल 2 चैप्टर से, चैलेंजेज एंड नेशन बिल्डिंग एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें से 25 क्वेश्चंस देंगे एंड एवरी क्वेश्चन कंटेन्स 4 ऑप्शंस, यू हैव टू सेलेक्ट वन डेफिनेटली। एंड in first term one more chapter, foreign policy of India will be included, will be added, ये हो जाएगा। और इसके बाद फिर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में एक आपका, इस टेस्ट में कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में हमने कोई चैप्टर नहीं दिया है क्योंकि सिंगल बुक से ही हमने उसको कवर करने की कोशिश किया है। लेकिन फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में, जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन आपका रहेगा, उसमें ये 3 चैप्टर्स तो रहेंगे, चैलेंजेस एंड नेशन बिल्डिंग, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, और उसके भी 3 चैप्टर्स रहेंगे। पहला आप देख सकते हैं कि कोल्ड वार, और इसके बाद फिर आप उसमें दूसरा चैप्टर जो डिलीट अगर ना हुआ हो, तीसरा चैप्टर, शुरू के 3 चैप्टर्स जो सीबीएसई बोर्ड ने डिलीट नहीं किया वो 3 चैप्टर्स, और इसके शुरू के 3 चैप्टर्स रहेंगे। तो फिर ये लगभग, इस पर अभी हम एक वीडियो और बनाएंगे, चैलेंजेस एंड नेशन बिल्डिंग पर एक वीडियो बनाएंगे। स्कूल खुल जाएगा तो ओपन डिस्कशन क्लास में हो जाएगा। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर भी अभी हम 1-2 वीडियो जनरेट करेंगे, और फॉरेन पॉलिसी और इंडिया पर भी 1-2 वीडियो हम जनरेट करेंगे। अगर स्कूल खुल गया समय से तो फिर हम लाइव क्लास में इसको लेकर के क्लियर करेंगे। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो सेकंड बुक है सिंस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, सिंस इंडिपेंडेंस का सिलेबस करीब क्लियर हो चुका है। चाहे हम इस टेस्ट की बात करें जो 9 अगस्त से होने जा रहा है, या जो नवंबर में परीक्षा फर्स्ट टर्म होने वाला है, तो फर्स्ट बुक के 3 चैप्टर्स करीब हमने इसको भी शामिल कर लिया है, क्योंकि एक स्लाइटली फोकस्ड वे में चलेंगे, क्योंकि इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यही 2 बुक्स आपके पास रहेंगी जहाँ से एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो बात MCQ की है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है पूरे। आप देखेंगे 1947 से 1948 से लेकर के और टिल 1989, जहाँ तक कांग्रेस सिंगल पार्टी के रूप में लगभग शासन किया है, वहाँ के किस तरीके से सिनारियोस क्रिएट थी। इंदिरा गांधी का शासन चला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, बीच में फिर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट कैसे आई थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ये आपका है। मैं समझता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड की मजबूरी है कि ये इन्होंने इसको डिलीट कर दिया है, लेकिन ये इस पर एक वीडियो मैंने बनाया है, और अगर स्कूल लेट खुला तो हम सेकंड वीडियो भी जनरेट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसमें आप 1947-48 की बात करें, 51-52 के इलेक्शंस की बात करें, एंड थर्डली वी आर गोइंग टू द फर्स्ट गवर्नमेंट आज फर्स्ट इलेक्शन 1952 में इलेक्शन हुआ, ये 51 भी मान सकते हैं। इसके बाद फिर 1957 में सेकंड इलेक्शन हुआ। इसके बाद थर्ड अगर हम करें 1967, 52, 57 और 1967। तो इस तरीके से अगर आप देखें, और अगर हम चलें 1971 की बात करें और फिर 1977 की बात करें, तो यहाँ तक सिंस इंडिपेंडेंस, अगर पहला इलेक्शन 1952 में देखें, सेकेंडली 57 में देखें, और इसके बाद फिर ये 62, बीच में एक इलेक्शन और कंडक्ट हुआ था। इसमें एक सीरीज आप इसको बना देख लीजिएगा। कुल मिलाकर के 1977 तक सिंस इंडिपेंडेंस कांग्रेस का पूरा प्रभुत्व रहा, डोमिनेंस रहा।